السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ آپ کے سامنے وہ منتخب کتاب جو ہم دورہ راہ میں جس پر اقرا کر رہے ہیں، اس میں آج یہ جو آیت ہے اس میں مسئلہ بیان ہوا کہ روزہ جو سحری تم کھا سکتے ہو، کب تک کھا سکتے ہو؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے الخيط الأبيض من الخيط الأسود۔ تو خیط کا لفظی معنی ہوتا ہے دھاگا، ابیض معنی سفید، سفید دھاگا، اور خیط الاسود، اسود معنی سیاہ، سیاہ دھاگا۔ تو سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، نمایاں ہو جائے، فرق واضح نظر آنے لگے۔ اب قرآن کریم کے الفاظ کا جو معنی ہے وہ صحیح کب سمجھ آئے گا، کب ہم سمجھ پائیں گے؟ دیکھیں، اس کا لفظی معنی تو یہی ہے، سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا۔ اور ہوا بھی ایسے، ایک صحابی نے سرانے کے نیچے دو دھاگے رکھ لیے، سفید اور سیاہ، کہا کہ جب یہ الگ الگ نظر آنے لگے تب تک سحری کھا سکتے ہیں۔ تو جب اذان ہوتی ہے، اگر یہ بلب، بجلی وغیرہ بلب نہ جلے ہوئے ہوں، لائٹ وغیرہ نہ ہو، تو آپ چھت پر مثلاً ہو، وہاں پر لائٹ نہ ہو، تو دو دھاگے سامنے کریں تو وہ کس وقت الگ الگ نظر آنے شروع ہو جائیں گے؟ رات کی تاریکی ہو، چاند کی روشنی بھی نہ ہو۔ جیسے کل بتایا گیا تھا کہ اذان ہو رہی ہے 5:10 پر، 4:56 پر، چلے 5 بار کر لیں، کب وہ الگ نظر آنے شروع ہوں گے؟ اگر 5 بجے اذان ہوتی ہے تو کیا وہ 5 بجے الگ الگ نظر آنے شروع ہو جائیں گے؟ 5 بجے، یا 5:10 پہ، 20 پہ، 30 پہ، 40 پہ، 50 پہ، کب الگ الگ نظر آنے شروع ہوں گے؟ نہیں سر جی، اس وقت تو الگ الگ نہیں نظر آئیں گے، بعد میں ہی نظر آئیں گے جب دن تھوڑا سا چڑھے گا۔ چلے، اس کا آپ لوگوں نے آج رات، کل ساری میں آپ تجربہ کرنا ہے کہ کب الگ الگ نظر آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ۔ وہ سے ابھی دو دھاگے لے کر بیٹھا رہا بیٹھا رہا، دیکھتا تھوڑی دیر بعد یہ بھی تو الگ الگ نظر نہیں آ رہے، وہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہو گیا۔ صبح آ کر اللہ کے نبی کو بتایا کہ وہ تو ایسے کیا، کہا اچھا تمہارا سرانہ تو پھر بہت بڑا تھا، نہ وسادتک لعریض، تمہارا تکیہ تو پھر بہت بڑا ہوا۔ اس سے مراد تو افق ہے، صبحوں کی سفیدی اور رات کی تاریکی ہے جو اس افق پہ، تو جو مشرق کی طرف جو پوری افق ہے، تو اس میں پہلے سیاہی ہوتی ہے اور پھر سفیدی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، تو سفیدی سیاہی سے نمایاں نظر آنے لگے، تو یہ ہے۔ تو تمہارے سرانے کے نیچے یہ ساری آگے بڑا، بہت بڑا سرانہ تھا تمہارا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ صرف لفظ کا معنی، عربی لفظ کا معنی آ جائے، کیا اس سے قرآن کا ترجمہ اور اس کا مفہوم اور اس کا صحیح فہم یہی ہے؟ نہیں، بس اوقات صرف لفظ کے معنی پر اکتفا نہیں کیا جاتا، اور کہاں کہاں نہیں وہ ساری تفاصیل احادیث میں موجود ہیں، جس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں، تفسیر القرآن بالحدیث کہتے ہیں، تفسیر القرآن باقوال صحابہ کہتے ہیں۔ اب دیکھو، ایک دوسرے مقام پر صحابہ کرام نے وہ آیت جب سنی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ایمان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کیا، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کہا اینا لم یظلم،
हमें से कौन है जो कभी जुल्म ना करे? हमसे तो जुल्म हो जाता है। देखो ये भी तो अपने नफ्स पर जुल्म है ना, कि इफ्तारी के वक्त पेट को वो चीज़ दो जिससे गजाइयत, कैलूस कैमूस खून बने, वो चीज़ मुहैया करो, उसके बजाय उसको पकौड़े समोसे दे दो जिससे जो पहले वाला है वो भी जले। तो क्या ये जिस्म के साथ जुल्म होगा कि नहीं होगा? होगा। ये जुल्म है। काय्युन अलम यज़लिम, एक जिस्म का हक है इसको सोने के लिए, आराम के लिए टाइम दो। इसको ज्यादा सुलाना ये भी इसके साथ जुल्म है, और नींद के लिए इसको टाइम ना देना ये भी जुल्म है। तो पड़ोसियों के साथ जुल्म, रिश्तेदारों के साथ हकूक, बीवी के हवाले से बीवी, खामद के हवाले से औलाद, के हवाले से औलाद, वालिदैन के हवाले से हुकूमत, के हवाले से हुकूमत, रया के हवाले से, पड़ोसियों के हवाले से, दोस्त अहबाब के हवाले से, मजदूरों के हवाले से, जानवरों के हवाले से, कौन है? गलती हो जाती है। कहा अय्युना लम यज़लिम, इधर तो यह आया कि जो लोग ईमान लाए और जुल्म ना किया वो कामयाब होंगे, तो हमसे तो जुल्म हो जाते हैं, फिर क्या बना? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे मुराद ये जुल्म नहीं, बल्कि इससे मुराद, क्या तुम्हें सुना नहीं लुकमान हकीम ने अपने बेटे को क्या कहा था? इन शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक इससे मुराद है कि जो ईमान लाए और शिरक ना किया, शिरक जो है वो जुल्म है और जुल्म अदीम है। इसको बोलेंगे तफसीरुल कुरान बिल कुरान भी कह सकते हैं, और तफसीरुल कुरान बिल हदीस भी कह सकते हैं, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वजाहत कर रहे हैं। तो कुरान करीम के वो मुकामात जिनकी तौजीहात और तशरीहात सब अकराम को समझ ना आई, उन्होंने जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए, या खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वजाहत कर दी, तो उनकी तौजीहात और तौजीहात, उनकी तफसीर वही लेंगे, उससे हटकर कहीं दाएं बाएं नहीं जाएंगे, और उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको छोड़कर अपने लफ्ज के पीछे पड़ जाएं। बाकी ठीक है, जिसमें कुरान का लफ्ज आ रहा है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, तो इसका मतलब नमाज कायम करो। आतु ज़कात, ज़कात अदा करो, तो ज़कात अदा करो। तो जो बिल्कुल वाज़े हैं वो ठीक है, वाज़े हैं। और जिनके माना मफाहिम को खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, रिवायात में मिल गया, या सहाबा कराम ने बयान किया, ऐसी आयात जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान तो मौजूद नहीं, लेकिन सहाबा कराम का बयान मौजूद है। सहाबा ने अपने पास से वो बयान नहीं किया, अल्लाह के नबी से सीखा हुआ ही आगे बयान किया। इसको बोलते हैं तफसीरुल कुरान बे अक़वाली सहाबा। तो उस सहाबी वो जो तफसीर कर रहा है, तो कुरान करीम के अल्फाज अक्सर का माना खुद ब खुद समझ आ रहा होता है, लेकिन जिसकी वजाहत में ये अहादीस और सहाबा के अकवाल, जिसको मौकूफ़ अहादीस कहते हैं, वो मौजूद हों, तो उनको लेना होगा, उनको छोड़ेंगे तो गुमराही के सिवा और कुछ नहीं होगा। जी, तो जब यकीन हो जाए कि अब सुबह हो गई है, फिर आप खाना बंद कर दें। अब तो अजानें हो जाती हैं जो टाइम तय है, तो फिर जो है वो जो हाथ में है अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो आप खा सकते हैं, जैसे हदीस में मौजूद है। बाकी अगर खाना शुरू नहीं किया फिर आप ना खाएं जब अजान शुरू हो जाए। अगर पहले से खा रहे हों तो जो पास मौजूद हो उससे अपनी ज़रूरत महसूस कर पूरी कर सकते हैं। अब ये मतलब नहीं कि आप रोटियों की पूरी टोकरी उठाकर बैठ जाएं और पूरी देगची हाथ में उठाकर बैठ जाएं, सालन की और दही की, चले जी अब सारी मैं ये जो हाथ में है ये ख़त्म होगी तो फिर ये ऐसा नहीं है। मतलब जो अपनी ज़रूरत है उसको पूरा कर लें, जैसा कि हदीस मौजूद है। यहाँ पर शायद आई। हाँ, जब यकीन हो जाए, अजान नहीं, आप ऐसे इलाके में हैं जहाँ पर अजान नहीं हुई, या बिजली चली गई और मसाजिद में अजान नहीं हुई, तो फिर आपने देखना है। आजकल तो घड़ियां हैं, घड़ियों में टाइम मालूम होता है। तो वो ऐसा ऐसी जगह या ऐसा वक्त कोई आ जाए कि आपके पास घड़ी भी ना हो, अजान का भी गुजरिया मालूम ना हो, फिर आप आसमान पे देखेंगे कि स्याही खत्म होगी, सफ़ेदी शुरू होगी। जब यकीन हो जाए सफ़ेदी आ गई है, तो यकीन तक आप खा पी सकते हैं। अहल्लल्लाहु
लाका अल अक्ल व शुरबा मा शकता, जब तक कभी शक है पता नहीं सुबह हुई कि नहीं, जब यकीन हो जाए कि सुबह हो गई तो फिर खाना बंद, और जब तक यकीन नहीं हो रहा तब तक आप खा सकते हैं। ये तब जब घड़ी भी ना हो और अजान भी इलाके में ना होती हो। जब घड़ी मौजूद है, पता है इस वक्त सहरी के खत्म होने का टाइम है, फिर तो उसी को आप फॉलो करेंगे, क्योंकि वो आपको यकीन हो गया कि 4:55 पे अजान होती है, 5 पे अजान होती है, 5:10 पे अजान होती है, टाइम हो गया है, यकीन हो गया है। अहल्लल्लाहु लकुमुल अक्ल व शुरबा, अहल्लल्लाहु, अल्लाह राबी हालत रफी। 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 क्यों? फाइल। नहीं, फाइल। फाइल फाइल। है। फाइल। अलामत जम्मा। जमा। जम्मा। जम्मा। जम्मा क्यों? इसम 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 मुफरद। मुफ्रद। इसम मुफरद मुनसरिफ। इसम मुफरद से। अल अक्ला व शुरबा, अल अक्ला का पहले करते हैं रबी हालत नस्बी। नस्बी। नस्बी क्यों? मफूल भी। मफूल भी ही। मफूल भी। नस्ब की अलामत फतह। कसरा, वो सॉरी फतहा। क्यों? फतह है। इसम मुफरद इसम मुनसरिफ। मुफरद मुंसलिक। मुनसरिफ। अशुरबा रबी हालत रफी। नस्बी। नस्बी, सॉरी। नस्बी। नस्बी क्यों? मातूफ। हाँ, मातूफ कह ये दो भी या मातूफ है। मफूल अतफ है। कह दो। दूसरा अतफ हो जाएगा मफूल। ना, दूसरा नहीं, दरम्यान में वाव है, वाव अतफ डालेंगे ना। मतलब जी जी। लामत फतहा क्यों? इसम मुफरद मुनसरिफ, तीनों का हो गया। मुस्लिम। ये शक्का 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 शक्कू शक्कत शक्कता शककना, मद्दा मद्दा मद्दू मद्दत मद्दता मददना, शककना। पहले माजी। औरत के लिए रोजे क्या काम? मैंने आपसे कहा था कि ये उर्दू में जो लिखा हुआ है ये सारा पढ़ लें, तो बहुत ज्यादा इल्म आपको इससे मिल जाएगा। ये हदीस सही है। अब ये हदीस है नंबर 1 में, हम देखते हैं जामे तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है। ये इमाम तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है। जिल्द नंबर 385, नंबर देखना हो तो नंबर भी आप तलाश कर सकते हैं। आप गूगल में ये लफ्ज़ लिखें, अल हामिल वल मुर्ज़ी, या वाज़ा अनिल मुसाफिर, ये लिख दें, तो ये हदीस आपके सामने आ जाएगी। जिनके पास जो है वो मकतबा शामिला है उससे भी आप तलाश कर सकते हैं। हदीस का जामे तिर्मिज़ी का नंबर आपको मिल जाएगा। बेशक अल्लाह ने वाज़ा वाज़ा माफ कर दिया, वाज़ा माफ कर दिया मुसाफिर को असौम व शतर सला, और निसफ नमाज। वाज़ा खत्म कर दिया, अनिल व अनिल हामिल, और हामिल से, हमल वाली औरत से, वल मुर्ज़े, और दूध पिलाने वाली औरत से। क्या माफ किया है? असौमा, नमाज नहीं, रोज़ा। तो जो हमल वाली खातून है, अगर उसको डर है कि रोज़ों से उसको अपनी जान का या बच्चे का, तो वो रोज़ा ना रखे। मुर्ज़े, दूध पिलाने वाली, अगर उसको खौफ है दूध पिलाने से, तो फिर वो रोज़ा ना रखे, और रोज़ा रखेगी तो ख़तरा है अपनी सेहत के हवाले से, बच्चे की सेहत के हवाले से। तो अल्लाह ने उसको रुख्सत दी है। तो जैसे अल्लाह पसंद करता है कि उसके अज़ाइम अजीमत को, फ़राइज़ को बजा लाया जाए, इस पर वो खुश होता है, ऐसे अल्लाह की रुख्सत को कबूल किया जाए, अल्लाह इस पर भी खुश होता है, इसको भी पसंद करता है। ये हदीस जिसका तर्जुमा मैंने आपको सुनाया। अब ये हदीस इसमें बयान हुआ कि जो हमल वाली औरत है, ऊपर सही बात यह है कि हामला और दूध पिलाने वाली औरत को मरीज पर क्यास किया जाएगा, इसके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है, वाजिब नहीं है, जायज़ है। हामिला और दूध पिलाने वाली, अगर वो रखना चाहती है तो रख ले, नहीं रखना चाहती तो बाद में इन पर सिर्फ कज़ा है, चाहे उन्हें अपने लिए ज़रर का अंदेशा हो या बच्चे के लिए, तो बाद में वो कज़ाई दे लें। और अगर बाद में भी कज़ाई का मौका ना मिले तो फिर वो फिदिया भी दे सकती हैं, जितने रोज़े छोड़े उतने मसाकीन का खाना, 10 रोज़े छोड़े 10 मिस्कीनों का खाना।
जी शेख, बहुत सारे लोग फतवा देते हैं इसे रखना जरूरी नहीं है, चाहे तो फिदिया दे दे। रखना जरूरी नहीं। आम दिनों में शेख, कजा जरूरी नहीं है मतलब। ठीक है ना, कजा देना चाहती है तो कजा दे ले। एक है कजा उसके लिए जायज नहीं, और एक है जरूरी नहीं। आपने ये कहा है जरूरी नहीं, तो जी। मैंने ये कहा है कि कजा देना चाहती है तो कजा दे ले। अगर कजा भी उसके लिए मुमकिन नहीं, बाद में भी रखने मुमकिन नहीं, तो फिर वो फिदिया दे दे। मतलब नहीं रखना चाहती, ऐसे कर ले। इन अल्लाह अल्लाह इराबी हालत। नस्बी। नस्बी। नहीं, बस भी क्यों? इन्ना का इन्ना इसम का है। इन्ना का इसम है। ऐसा नस्ब की अलामत। फतह। फतहा। हाँ, इसम मुफरद मुंफरद। से मुफरद मुनसरिफ। मुफरद वाला अल मुंसरिफ। मुसाफिर। अल मुसाफिर इराबी हालत। जर्री। जर्री। जरी। जर। जरी, जर्री। मुजाफ इलैह। नहीं, जरी मुजाफ। अनजार का अन क्या? जार अनजार का मजरूर। मजरूर। जार का मजरूर है ना। जर की अलामत। कसरा। 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 क्यों? मुफरद इसे मुंसरिफ। मुफरद। इसम मुफरद मुनसरिफ। जी। खत्म कर दिया है, माफ कर दिया है। क्या माफ किया है? माफ करने का काम असौम के ऊपर वाक़ हो गया। असौम इराबी हालत। नस्बी। 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 जी क्यों? मफूल मफुल बिही। भी। मफूल मफूल भी बिही बन रहा है। नस्ब की का अलामत। काम हुआ ना मफूल जी। फतहा। फतहा। फतहा क्यों? इस इसम मुफरद मुफरद मुनसरिफ। इसम मुफरद मुनसरिफ। शतरा शतरा इराबी हालत। नस्बी। 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 भी क्यों? मातूफ। मातूफ। तफ। मातूफ। अतफ। तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। नस्ब की अलामत फतहा क्यों? इस अतफ। मुफरद मुनसरिफ। इसे मुफरद असलाती मुनसरिफ। इराबी हालत। जर्री। कसरा। जरी। जर्री। जर्री क्यों? जर्री। मुजाफ इलैह। मुजाफ अंजा, इलैह। मुजाफ इलैह। मुदाफ इलैहि। जर की अलामत। कसरा। 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 असरा क्यों? इसम मुफरद मुनसरिफ। मुफरद मुनसरिफ। और इल्हामिल अलहामिल इराबी हालत। जर्री। जर्री। जरी। जर्री। जरी, जर्री क्यों? अनजार का अंजाम मजरूर। जार का मजरूर मजरूर। जर की अलामत। कसरा क्यों? कसरा। कसरा। मुफरद मुनसरिफ। इसम मुफरद मुनसरिफ। अल मुरब्बी इराबी हालत। जर्री। जरी, जर्री जरी। क्यों? अत्फ। ये अतफ। अतफ जर की अलामत। अतफ है। कसरा। तरा, रा क्यों? मुफरद मुफरद इसम मुनसरिफ। मुफरद मुनसरिफ। मुफरद मुनसरिफ। इसका अतफ इसके ऊपर हो जाएगा। वाज़ा अनिल हामिल वल मुर्दे। हामिल और मुर्दे से खत्म किया। क्या खत्म किया? अस्सौम। अस्सौम की राबी हालत। नस्बी। नबी, ये नस। ये है नस्बी क्यों? नस्बी। ये मफूल बिही। मफूल। मफूल फूल भी बना। वही, सब की इस पर अलामत। काम हुआ है। फतहा। फतह। इसम फतहा मुफरद क्यों? फतहा। मुंसरिफ। इसम मुफरद मुंसरिफ। फतहा क्यों? इसे मुफरद मुनसरिफ। हाँ जी, सब मुफरद मुनसरिफ। वानिल करा दो। हामिल वल मुर्दे अस्सौमा, यानी वाज़ा अस्सौमा, तो इसका ताल्लुक इस वाज़ा के साथ हो जाएगा। और ये इन्ना की खबर बन जाएगी। हाँ जी। एक और तरीका है कि इसका अतफ इसके ऊपर डाल दें, यानी अनिल हामिल वल मुर्दे का अतफ अनिल मुसाफिर पर। ठीक है। और असौमा व शत्र सलात के ऊपर अतफ असौम का। तो ये मिलकर मफूल भी ही, और ये मिलकर मुतल्लिक हो जाएगा, और ये वज़ा फेल फाइल हो जाएगा। फेल फाइल। अनिल मुसाफिर जार मजरूर मिलकर मातूफ है। अनिल हामिल वल मुर्दे ये सारा मिलकर मातूफ, मातूफ ला मातूफ मिलकर फिर मुतल्लिक का। तो मामूल का मामूल के ऊपर अतफ। दो मामूल का दो मामूलों के ऊपर अतफ। आमिल एक है,
आमिल एक है, वज़ा आमिल एक ही है। ले जी। वसल्लल्लाहु अला नबियिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। इसके साथ ही आपकी किताब मुकम्मल होगी। हम आखिरी जो दुआ है इसका इजरा भी कर लेते हैं। वसल्लल्लाहु अल्लाहु इराबी हालत रफी। 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 क्यों? फाइल। अल्लाह फाइल। ने सलामती है। भेजी। किलामत जमा। जम्मा। जम्मा। गम्मा क्यों? जमा। जम्मा जम्मा। इससे इसम मुफरद मुफरद। मुंसरिफ। इसम मुफरद मुफरद मुनसरिफ। अला नबीना नबी ये इराबी हालत जरी। 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 जर्री। जर्री क्यों? अला अला जार अला का जमा। जम। मजरूर। जार मजरूर। जार की वजह से। मजरूर जर खिलामत कसरा। कसरा। कसरा क्यों? इससे इसम मुफरद मुफरद इसम मुंसरिफ। मुनसरिफ। मुफरद इससे मुनसरिफ। मुफरद मुनसरिफ। अला नबीना मोहम्मद रख दें। हाँ। मोहम्मदिन इराबी हालत जरी। 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 जर्री क्यों? अला बदल। की ये वजह जार से। मजबूर। जार मुज, मजरूर। नहीं, जार ये बदल। मजरूर किधर है जार? मुजाफ है। नहीं नहीं नहीं। नहीं। हाँ? मुजाफ ये बनेगा ना अला नबी ना का। मुजाफिल है मुजाफिल है। नहीं। बदल। हाँ बदल। बदल। हाँ। बदल। मुख्तलिफ में नो बदल या कह लो या मुबय्यन बयान कह लो। मुख्तलिफ में नो बदल की पहचान के इसको हटाकर देखें। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन माना ठीक है। जी। हम्म। और मुबय्यन बयान अला नबीन हमारे नबी आगे बयान हो गया कौन से नबी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्म। मुबय्यन बयान आली ही। तो बदल बना लें या बयान बयान बना लें। और लामत कसरा क्यों? इसम मुनफरद मुनसरिफ। इसम मुफरद मुनसरिफ। आल आली ही साहबी ही दोनों की एक ही बात होगी। चलिए पहले आली ही कर लेते हैं। आली ही राबी अलत जरी। जर्री। जरी। जर्री। जर्री क्यों? अतफ है। ये मातूफ। अतफ है। अतफ किसके ऊपर अतफ इसका? नबी ही हुआ ना पर। हाँ नबी नबी पर। के ऊपर आएगा, नबी के ऊपर। अलामत कसरा क्यों? सिर्फ कसरा। इसे मुफरद इसम मुंसब। मुफरद। साहबी ही रबी हालत जर्री। जर्री। जरी। क्यों? अतफ। ये अतफ। अतफ है ये भी। ये मतुफ सानी हो जाएगा। अलामत कसरा कसरा। इसके क्यों? कसरा। इससे मुफरद मुंसरिफ। इसम मुफरद मुनसरिफ। साहबी ही ये इसम मुफरद है, वाहिद है। सहाबा एक जमन। साहबी है कि ज्यादा है? जमा। जमन है जमन है। जमा 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 मुकस्सर। मुकस्सिर। मुकस्सर। जमा मुकस्सर। हाँ तो वाहिद क्या है इसकी? साहबी। वाहिद क्या है? ये साहब। वाहिद है साहिब। 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 साहिब की साहिब। जमा साहबुन। जैसे साहिब। राकिब की जमा रकबुन। राकिब से रकबुन। और साहिब से साहबुन। साफिरुन से सफरुन। चलो। तो ये हो जाएगी जमा मुकस्सर। जी जी माशाअल्लाह। इसके साथ ही हमारा पूरी किताब का इजरा जो है वो मुकम्मल हुआ। अब वो तलबा हाथ खड़े 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 करें जिन्होंने इजरा साथ साथ लिखा हुआ मुकम्मल। वो हाथ खड़े करें जिन्होंने लिखा हुआ है राफ या असल जैसे भी लिखा हुआ है जैसे तैसे भी। वो हाथ खड़े करें। यहाँ से पता चलेगा हकीकी माना में स्टूडेंट कौन है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी बात है जी। 4 लोग हो गए। इकरा है, असलम है, मोहम्मद असलम, मैशा है, आमिना इलियास है। 4।
जिन का, ये हाथ नीचे कर लें। अब जिनका निसफ से ज्यादा लिखा हुआ है तकरीबन, वो हाथ खड़े करें। इनका निसफ या निसफ से ज्यादा लिखा हुआ है। अच्छा, ये जिन्होंने लिखा ये बताएं कि सफ़ात कितने हैं, इधर चैट में लिख दें। हर एक अपने सफ़ात गिन कर इधर लिखे कि कुल सफ़ात इतने। इकरा असलम जिन्होंने मुकम्मल लिखा। ये बुक नहीं मिल रही ग्रुप में, क्यों नहीं मिल रही? दोबारा शेयर कर देते हैं। तो आपका जो है ना वो 2 से 3 सफ़ात, 2-3 लिखे। इकरा ने 20 लिखे हैं, और बाकी भी आपने बताएं। अब ये 20 सफ़ात लिखने को मुश्किल है, तो एक दिन में आप लोग लिख लेंगे। लिहाजा आज कोशिश करें कि ये सब मुकम्मल कर लें। फिर हमने सर्फ के भी पूछने हैं, लिहाजा उससे पहले पहले इसके मुकम्मल कर लें। बाकी बताएं क्या नाम थे बाकी जिन्होंने मुकम्मल लिखा था? एक असलम था, एक आमिना ये का सारे नाम मतलब था। मैं गिन रहा हूँ तकरीबन 25-30 पेज से ऊपर ही होंगे इंशाल्लाह। हाँ, गिने गिने, शाबाश। जल्ला खान, आप बातें बहुत करते हो। रजिस्टर के 20 सफ़ात हैं हमारे माशाल्लाह। आमिना के 22, उमेशा के 25। जबरदस्त। 20, ये 22, सारे मतलब 25। हाँ। 25 सफ़े जो है ना वो कॉपी पे लिखे हुए हैं, और बाकी मैंने ये जो बुक है ना इसकी प्रिंट निकाल के इसके ऊपर जो तरकीब है वो सारी लिखी हुई है, ठीक हर हो पेज के ऊपर ही। ठीक हो गया, इनको आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। और मैं लिख जिनके लूंगा। पास टाइम ज़्यादा हो, पहले तो रफ फ़र्ज है। जिनके पास टाइम ज़्यादा हो वो असल करके भी इसको लिखें। और जिनके पास वक़्त हो, कंप्यूटर के अंदर जैसे ये खूबसूरत सी फाइल बना देते हैं, तो ये एक वो भी बना दे जिसके पास टाइम हो। तो और जो सबसे साफ लिखे वो मुझे शेयर भी कर दे, मैं उसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो ये हमारा जो निसाब हमने तय किया था ये मुकम्मल हुआ, और उम्मीद है इंशाअल्लाह बहुत कुछ आपने इससे सीख लिया होगा। असल चीज़ होती है कवाइद को लागू करना। मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात जो पड़े हुए हैं, तो सामने कोई आए तो हम उसको फौरन पहचान जाएं कि ये फलां चीज़ है। अब मिसाल के तौर पर किसी ने मोहम्मदिन को कह दिया मुजाफ, तो अब दरम्यान में ना है, नबी ये ना, समीर कभी भी मुजाफ नहीं होती। और दूसरा इसमें मुजाफ मुजाफ अलैह का माना भी कोई नहीं कहा कि तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हमने इसको दूसरी चीज़ों की तरफ लेकर जाएंगे। ना तो ये मजरूर है ना ये मुजाफ अलैह, क्या बनेगा फिर? तवाबे में से कुछ बनना है, और वो क्या कुछ बनना है वो हम गौर करेंगे और फाइनल करेंगे। जी। आपका जो निसाब तय किया गया था वो तो माशाल्लाह मुकम्मल हो गया, और ये 10-12 दिन के अंदर इतना काम कर लेना, 20-30 सफ़ात, तो यकीनन ये एक वो भी घर बैठे सीख लेना। तो ये एक नादिर मिसाल होगी पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की चीज़ सिखाई गई। मेरे ख्याल में शायद इस तरह की चीज़ सिखाएगी पूरी दुनिया में, ये एक ही मिसाल हो ऑनलाइन। तो जी, किसी के इल्म में है कहीं और इस तरह कुछ सिखाया जा रहा हो? हमारे तलबा कई जगहों पे मुंसलिक होते हैं, तो कुछ मालूमात होती हैं जो मुंसलिक हैं इदारों के साथ। तो क्या कोई बता सकते हैं कहीं और भी ऐसा कोई सेटअप और ऐसा हो?
जी, तो इसमें सही फायदा तभी होगा जब आप इन चीज़ों को बार बार दोहराएंगे। तो इनको कॉपी पे लिख लें, ऊपर हदीस हो और उसके नीचे, तो हदीस को पढ़ते जाएं और उन चीज़ों को देखते जाएं। जिसकी समझ ना आए वो आप नीचे अपने लिखे हुए को देखकर, तो इसको, इस लिखे हुए ये 20 सफ़ात, 25 सफ़ात, 30 सफ़ात जितने हों, इनको आपने दोहराते रहा करना है। जी, आपका निसाब तो मुकम्मल हुआ, लेकिन अब बात यह है कि हमारे दिन तो कुछ बाकी हैं, तो क्या करना है उन दिनों में? दोहराए। हाँ बिल्कुल, ये हमारा काम दोहराई। है। क्या आप इनको दोहराई। लिखें, आप इनको लिखें और दोहराई करें। ठीक हो गया ना? ठीक। इसको सुने, और जिसकी समझ ना आए वो आप अपने ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, वहाँ भी कोई जवाब ना मिले तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो इनकी आप दोहराई करें, और इसका इम्तिहान होगा। और इम्तिहान हम जो है वो तलबा की ज़रूरत के पेश नज़र रमज़ान के बाद लेंगे, क्योंकि बाद ने रमज़ान के बाद ही सुनना है। तो रमज़ान के बाद कितने दिन के बाद रखें? 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद? मसलन एक स्टूडेंट है, उसने रमज़ान में कुछ भी नहीं सुना, रमज़ान के बाद उसने सुनना है, तो कि उनको कितने दिन दें? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन? जिसने उस्ताद मोहतरम बिल्कुल नहीं सुना उसको तो 15 दिन तो चाहिए होंगे, क्योंकि रोजाना एक हाँ, लेक्चर सुनेगा वो। ठीक है। पंद्रह दिन। तो ईद के बाद कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों के पास भी घूमना फिरना होता है, तो मेरे ख्याल में 20 दिन ना दे दें। जी देख लें उस्ताद मोहतरम, ये शफकत होगी। अच्छा, खालदा ने कहा 20 दिन, चलें जी, खालदा की बात हम पक्की कर लेते हैं, तो 20 दिन कर लेते हैं। उस्ताद मोहतरम ये एमसीक्यू टाइप होगा, जिस तरह पहले हमने एक असाइनमेंट हल की हुई है। हाँ जी, क्या सवाल किया आपने? मैंने कहा ये जिस तरह हमने पहले एक असाइनमेंट हल की थी एमसीक्यू टाइप, उसी तरह होगा या इसमें हाँ जी इसके बिल्कुल, तरकीबें नावी। एमसीक्यूज होगा, गूगल शीट पे होगा, उस पे एलएमएस पे नहीं होगा, गूगल शीट पे होगा। उस अच्छा। पे भी वही तरीका ही है, और खुद ब खुद नंबर उसके लग जाते हैं, और वो हमारे पास जी पहुंच ठीक। जाएंगे। तो बस ठीक हो गया जी एलएमएस जी। पे वो अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता है, तो गूगल शीट पे जी जी। अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। ग्रुप में गूगल शीट हम जी शेयर जी। कर देंगे, तो आप उसको बस ओपन करेंगे और हल कर देंगे। जब हल करके आप सबमिट करेंगे वो हमारे पास पहुंच जाएगी। जी ठीक है सर। ठीक हो गया जी, हम किताब ग्रुप में शेयर कर वालेकुम देते शेख। हैं, और वालेकुम शेख, बताओ। इम्तिहान का तरीक़ाकार भी शेयर कर देंगे, और तारीख भी शेयर कर देंगे। जी। जी शेख, मेरी एक रिक्वेस्ट थी। अभी वक्त बाकी है बोले आप, तो उसमें अभी कुछ मजीद पढ़ाइए आप जो टफ है। नहीं, वो पढ़ाई तो हम कर एक चीज़ लेंगे, तय की है ना, मेरे अभी ख्याल नहीं में कर इसी को लेंगे हम कर पढ़ाई। लें। इसी को कर लेते हैं, ये जो चूंकि किताब तय की थी, तो आप इस किताब जी को मुकम्मल पढ़ भी लें। जिन लोगों ने इसको पढ़ लिया है वो हाथ खड़े करें। जिन्होंने इस किताब को पढ़ लिया है मुकम्मल, वो हाथ खड़े करें। एक, बस। तो ये उर्दू में है, बाकी सारी आप पढ़ लें। और लिखा भी नहीं, 4 तलबा ने बस लिखा है। तो हम ज़्यादा पढ़ाते जाएं, ज़्यादा पढ़ाते जाएं। एक है कम पढ़ाएं, तलबा उसको काबू कर ले, उसको बार बार दोहराएं, उसको पुख्ता कर ले। और एक है बस ज़्यादा पढ़ाते जाएं, ज़्यादा पढ़ाते जाएं, उनके पल्ले कुछ भी ना पढ़े, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं इसको आज ही शेयर कर देता हूँ, किताब को पढ़ भी लें, और इसके नोट्स वगैरह वो सारे बना लें। जिनके लेक्चर जो जो रहते हैं वो सुन लें, और जो सुने हुए हैं अगर टाइम हो दोबारा भी सुने। ये नहीं कि किसी के अगर शेयर किए जाए तो बिल्कुल फोटोकॉपी करके आप लिख दें, और एक आप सुन कर लिखें, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा।
جی کسی کا کوئی اور سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ چلے جی پھر اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم نے جو یہاں پر وقت گزارا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کا ہمیں بہترین صلہ دنیا کے اندر آخرت کے اندر عطا فرمائے۔ ہم سب کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑ دے، قرآن و حدیث کے الفاظ کو ہمارے سینے میں ہمارے دل میں جما دے، اور ہمیں قرآن کے معنی مفہوم کے ساتھ ہمارے دل کو لگا دے، اور ہماری زندگی ساری کی ساری کتاب و سنت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زندگی ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم گھر میں ہوں، ہم بازار میں ہوں، ہم گلی میں ہوں، ہم چوک چوراہے میں ہوں، ہم دن کو ہوں رات کو ہوں، جس حالت میں ہوں ایسی حالت میں ہوں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اس کو ہم پسند آ رہے ہوں، وہ ہم پہ خوش ہو رہا ہو، وہ ہم پہ رشک کر رہا ہو، اللہ کریم ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔